आगे बढ़े آپ کو بتائیں کہ مٹھاس میں کڑواہٹ، چینی کا ایکس مل ریٹ پھر سے بڑھ گیا۔ چینی کے فی کلو کا ایکس مل ریٹ 162 روپے کلو تک جا پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت 170 روپے سے اوپر چلی گئی۔ تاجر کہتے ہیں چینی کی کم پیداوار ہونے کی وجہ سے قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ تفصیلات فضیل احمد کی رپورٹ میں۔ چینی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ فی کلو چینی ایکس مل ریٹ 5 روپے بڑھ گیا۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 155 سے بڑھ کر 160 روپے کلو ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت 170 روپے کلو سے تجاوز کر گئی۔ چینی کا کاروبار کرنے والے تاجر کہتے ہیں کہ اس بار تقریباً چینی کی 1 کروڑ بوری کم پیداوار ہوئی، جس کی وجہ سے قیمت بڑھ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں قیمتیں مزید بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ پچھلے سال ہمارے پاس جو چینی بنی تھی اس مرتبہ اس سے تقریباً 1 کروڑ بوری یعنی 20% کے قریب جو کم بن رہی ہے چینی۔ تو جب کم ہوگی ایک چیز اور اس کے ہماری لاگت اس سے زیادہ ہوگی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سیاپا جو ہے نا وہ پڑنا ہے۔ رمضان المبارک میں چینی کی قیمت میں 2 بار اضافہ ہو چکا ہے، جس پر عام شہریوں کی جانب سے بھی پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ رمضان المبارک میں بھی مصنوعی مہنگائی نے صارفین کو مرغا بنا دیا۔ چکن ایسوسی ایشن جنگ کے شہر بھر میں جزوی ہڑتال، بیشتر دکانوں کی شٹر ڈاؤن رہے۔ شہریوں نے برائلر گوشت کی تلاش میں جوتے گھسا دیے۔ تحصیل صدر رانا عارف کہتے ہیں 700 روپے کلو میں ملنے والا چکن 591 روپے میں نہیں بیچ سکتے۔ غیر معینہ مدت تک ہڑتال جاری رکھنے کا اندیا۔ تفصیلات وسیم عزیز کی رپورٹ میں۔ انتظامیہ چکن کی قیمتوں کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنے میں ناکام۔ چکن ایسوسی ایشن نے جزوی طور پر برائلر گوشت کی فروخت بند کر دی۔ شہر بھر میں چکن فروشوں کی بیشتر دکانیں بند رہیں، جس سے شہریوں کو چکن کی خریداری میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تحصیل روڈ رانا عارف کا کہنا تھا کہ مرغی خانے سے 700 روپے ملنے والی چکن 591 روپے میں کیسے فروخت کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 591 سے زائد قیمت وصول کرنے پر بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عوام کو ریلیف دینے کے جو دعوے گورنمنٹ کر رہی ہے وہ سراسری غلط ہو رہے ہیں، کیونکہ فارمر پہ جو ریٹ مل رہا ہے اس پہ سرکاری ریٹ کے نظر میں تقریباً 150 روپے کا فرق ہے، اور 150 روپے دکاندار کے اپنے پاس سے کیسے اس کو اپنا پورا کرے۔ اس کو انہوں نے ریٹ زیادہ کیا ہوا ہے۔ جو ہماری گورنمنٹ مشینری ہے یہ فارمر پہ جاتی نہیں ہے، دکانداروں کو بھاری جرمانے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دکاندار بھی تنگ ہوئے پڑے ہیں اور کسٹمر بھی تنگ ہوئے پڑے ہیں۔ صدر چکن ایسوسی ایشن رانا عارف کا کہنا تھا کہ صوبائی تنظیم کی کال پر غیر معینہ مدت تک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ فیصل آباد میں سرکاری ریٹ لسٹ پر سبزیاں اور سبز مسالہ جات دستیاب نہ ہو سکے، شہری منافع خوروں کے ہاتھوں لوٹنے لگے۔ تفصیلات عمر رانچا کی رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد میں سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی سرکاری ریٹ لسٹیں محض دکھاوے کی رہیں، شہری منافع خوروں کے ہاتھوں لوٹتے رہے۔ آلو ایک ہفتے میں 4 روپے سستا ہو کر بازار میں 60 روپے فی کلو بکتا رہا۔ پیاز 11 روپے سستا ہو کر 63 روپے فی کلو جبکہ بازار میں 70 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ ادرک چائنا کا سرکاری ریٹ 375 روپے کلو، بازار میں 400 روپے فی کلو فروخت ہوتا رہا۔ 600 روپے والا لہسن چائنا بازار میں 650 روپے فی کلو میں دستیاب۔ سبز مرچ 100 روپے فی کلو میں فروخت ہوتی رہی۔ مٹر سابقہ ہفتے کی قیمت 55 روپے برقرار جبکہ بازار میں 80 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے۔ گاجر ایک ہفتے میں 4 روپے مہنگی 40 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی خریداروں کے لیے بے سود ثابت ہونے لگی۔ شہری کہتے ہیں مارکیٹ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر ریٹ لسٹ تو جاری کر دیتی ہے مگر ان قیمتوں پر عمل کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ یار یہ بازار میں کسی کا کوئی ریٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا ریٹ ہے ان چیزوں کا، اس کا اور ریٹ ہے، اس کا اور ریٹ ہے، ہر چیز کا اپنا ریٹ ہے۔ انہوں نے اپنا لٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا ہے کہ یار تھوڑا سا کنٹرول کریں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے، ان کا تھوڑا سا ایکشن لیں تاکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ کم مہنگائی عوام تک نہ آئی، گراہ فروش سستی ہوئی سبزیاں شہریوں کو مہنگی بیچنے لگے۔ کیمرامین رانا ادریس کے ہمراہ عمر رانجا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور دوسری جانب فیصل آباد میں رمضان پیکج سے کٹوتی پر دکانداروں کو دھر لیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
रमजान में मकामी हुकूमत की मकामी लोगों की भरपूर खिदमत। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 1,86,707 पे ऑर्डर्स तकसीम। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद शहजाद अकरम ने बताया, यूसी सेक्रेटरीज घरों में पे ऑर्डर्स फराहम कर रहे हैं। पे ऑर्डर्स की 100% फराहमी जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। कटौतियों की शिकायत पर उनका कहना था कि फौरी कार्रवाई कर रहे हैं। मुस्तहिक अफराद का हक मारने वाले इंतजामिया के हाथ आ गए। फैसलाबाद में रमजान पैकेज से कटौती पर 2 दुकानदार पकड़े गए। थाना रजाबाद में दुकानदार उस्मान और नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम दुकानदार पे ऑर्डर्स की रकम से 200 रुपए काट रहे थे। पटवारी उस्मान अशरफ की निशानदही पर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई हुई। फैसलाबाद डिवीजन मसाइल की दलदल में फंस गया। कोई रोड टूट फूट का शिकार तो कहीं सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। इंतजामिया की हरधर्मी से शहरी आग बगोला। गुलाम मोहम्मद आबाद में खस्ता हाल ड्रेन। शेखुपुरा रोड पर खुले मैन खोलकर राहगीरों का शिकार करने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद का धनोला बाईपास रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों के बायस गाड़ियों और रिक्शों का उलटना मामूल बन गया। मुतादिद हादसात भी रूनुमा हो चुके। अरसे दराज से रोड की हालत बेहतर ना की जा सकी। इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मगन रही। कलाते निक होई है कि इत्थे 2-3 औरतां दे सिर भी फटे ने गिर के रिक्शा उल्ट के। एक्सीडेंट मोटरसाइकिलों दे होए ने। 1-2 बच्चियां दी लत्तां भी टुटियां वा। एमपीआं कोलों भी किहा वा कि यार रोड जेड़ा बनवा दिओ। वो बस कह दिंदे ने, आउंदा कोई भी नहीं हैगा, सर्वे करके चले जांदे। हुकूमतें बदली मगर पुराना चिन्योट रोड झंग की हालत ना बदल सकी। सियासी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी और जिला इंतजामिया की गफलत से रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। सड़क पर गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। सड़क पर पड़े पत्थर हादसा को दावत देने लगे। गुजरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और खासतौर पर नमाज के औकात में गुजरना और ही मुश्किल हो जाता है कि हमें जाकर घर दोबारा कपड़े चेंज करना पड़ते हैं। छींटे पड़ते हैं तो रोड से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तोबा टेक्सिंग में डाक खाना बाजार और मुलैका रोड की हालत अबतर हो गई। सड़क की टूट फूट और बदहाली के नतीजे में इलाका मकीन शदीद परेशान। सड़क पर मौजूद पत्थरों की वजह से दुकानदार जख्मी होने लगे। सड़क पर आए रोज हादसा भी मामूल बन चुके। शहरियों का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए इकदाम उठाएं ताकि हादसात की शरह में कमी और दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मद आबाद बड़े कब्रिस्तान की साइड ड्रेन कई साल से टूट फूट का शिकार। ड्रेन में कचरे के ढेर लग गए। सफाई न होने से निकासी आब का निजाम शदीद मुतासिर। रात के वक्त राहगीरों के ड्रेन में गिरने के वाकयात भी पेश आ चुके। ड्रेन मच्छरों की अमाजगाह वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया। शेखुपुरा रोड फैसलाबाद में खुले मेन होल हादसात को दावत देने लगे। सड़क के बीचों बीच खुले मेन होल इंतजामिया की हर धर्मी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत रुकावटें रखकर जान बचाना ही मुनासिब समझा। फैसलाबाद निशाताबाद पुल से वन वे की खिलाफ वर्जी करना शहरियों का मामूल बन गया। बैरियर होने के बावजूद शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे। वन वे की मुखालफत समत में आने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए। तफसीलात वसीम नकवी की रिपोर्ट में देखिए। कानून की पासदारी बगैर सख्ती के नामुमकिन। फैसलाबाद निशाताबाद पुल से वन वे की मुखालफत करना शहरियों का मामूल बन गया। बड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे सब मुखालिफ सिमत इस्तेमाल करने लगे। सड़क के दौरान रखे गए बैरियर भी मौसर साबित न हुए। वन वे की खिलाफ वर्जी की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने लगे। वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि मुनासिब इक़दाम करे। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में छुट्टी के रोज चोर डाकुओं की बड़ी दिहाड़ियां। 24 घंटे में स्ट्रीट क्राइम की छोटी बड़ी 120 वारदातें। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में डाकुओं और चोरों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटों में स्ट्रीट क्राइम की 132 वारदातें रिपोर्ट हुई। 2 घर लूट लिए गए। राजधानी की 61 वारदातें रिपोर्ट। दीदा डाकुओं ने 3 मोटरसाइकिलें छीन ली, 3 कारें, 26 मोटरसाइकिल, 6 मवेशी और कीमती इशिया चोरी। नकबजनी 11 और नौसरबाजी के 5 वाकयात भी सामने आए। इसके वारदातों में कमी के तमाम दावे हवा बुर्द हो गए। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। तमगा इम्तियाज गुलकार असद अब्बास की बेवा और बच्चे जमाने के रहमो करम पर रहने पर मजबूर। असद अब्बास का नाम लेकर उनकी बेगम की आंखों से आंसू छलक पड़े। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाला नौजवान गुलकार असद अब्बास की बेवा और कमसिन बच्चे जमाने के रहमो करम पर रहने पर मजबूर। असद अब्बास का नाम लेकर ज़ारो कतार रोने लगी। हालात से तंग आकर सोशल मीडिया पर वजीर आला मरियम नवाज से नौकरी का मुतालबा कर दिया। मैं बस ये चाहती हूँ कि असद अब्बास ने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया है। हुकूमत ने उनका कोई साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं मिली उनको। जब वो बीमार थे तब निगरान हुकूमत थी, वो लोग आए थे घर पे, पूरी टीम आई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई मदद नहीं की। मेरे दोनों बच्चों के ऑपरेशन भी हुए, कोई मदद नहीं की। मैंने एप्लीकेशंस भेजी हैं, हर इदारे में भेजी हैं, लेकिन मुझे किसी से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
आमना असद अब्बास कहती हैं, मेरे शौहर इलाज के लिए अपील करते करते इंतकाल कर गए। मेरे बच्चे बीमार हैं, इनका इलाज नहीं करवा सकती। इनका कहना था कि मरियम नवाज कहती है कि वो सबकी माँ है, मेरे बच्चों की और मेरी माँ भी बन जाए। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। असद अब्बास ने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया है, आर्मी के लिए बहुत काम किया है। वो हमारे पाकिस्तान का सरमाया थे। मैं उनकी बेवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो हमारा ख्याल किया जाए। वो इतने लोगों को करती हैं और मेरे बच्चे तो हकदार है इस हुकूमत पर, मैं भी हकदार हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो कहती है कि मैं आप सबकी माँ हूँ, वो मेरी भी माँ है, क्योंकि मेरी खुद की भी माँ नहीं है, ना मेरा बाप है। आमना असद ने हुकूमत से नौकरी और छोटे बच्चों के इलाज के लिए ताउन की अपील कर दी। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। के फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून की एमपी उस्मा राजा की रहायशगाह पर वुमेन डे के हवाले से तकरीब। मुस्लिम लीग नून की शोबा खातीन की ओहदेदारों की तकरीब में शिरकत। तफसीलात मरियम रजा की रिपोर्ट में। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून की एमपी उस्मा राजा की रिहायशगाह पे वुमेन डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून की शोबा खवातीन की ओहदेदारान की तकरीब में शिरकत। तकरीब में सिटी सदर शोबा खवातीन डॉक्टर नजमा अफजल ने खसूसी शिरकत की। उस्मा राजा का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खवातीन के लिए काम कर रही हैं। हमें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की टीम में होने पे फख्र है और औरत, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा, पाकिस्तान में खवातीन 52% हैं, मर्दों से ज़्यादा हैं। तो अगर हम औरतें मिल के कोशिश करें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, तो पाकिस्तान को एक आलमी ताकत बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इस मौके पर सिटी जनरल सेक्रेटरी कौशर सानी, नायब सदर रेहाना शाहिद, सतारा राना और दीगर ओहदेदारान खवातीन शरीक। सिटी सदर डॉक्टर नजमा अफजल कहती हैं, शोबा खवातीन माशरे का अहम हिस्सा हैं और इनको सियासी तौर पर मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त सिर्फ जो है हमारी बुनियादी सहूलत जो है, वो जो हकूक है, वो है तालीम, सेहत, सियासी तौर पर इस्तेहकाम और हमारा जो इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार। कि हम सबको वादा करना चाहिए, आज हमें वाकई वादा करना चाहिए। रमज़ान मुबारक का महीना है और ख़वातीन के आज आलमी दिन भी है। हम सबको एक होना पड़ेगा। जब तक हमें मुनाफकत खत्म नहीं ना होगी, हम सब एक नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने इफ्तारी करके मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की। कैमरामैन रामेश रऊफ के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में अल-फतेह मार्ट कोहिनूर में कुरानदाजी का इनाकाद किया गया। कुरानदाजी में गिफ्ट, हैम्पर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेकोरेशन की चीजें इनाम के तौर पर रखी गई। कस्टमर्स 5000 की शॉपिंग करके कुरानदाजी में हिस्सा ले सकते हैं। तफसीलात बता रहे हैं अहमद साद। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कोहिनूर प्लाजा जड़ावाला रोड वाला जो अल-फतेह है, वो लाया अपने कस्टमर्स के लिए जीतने के लिए डेरो मुआके, जिसमें जो वो आप कुरानदाजी में हिस्सा लें, 5000 की शॉपिंग करें, कुरानदाजी में हिस्सा लें। और कोहिनूर प्लाजा जड़ावाला रोड वाला जो अल-फतेह है, वो लाया अपने कस्टमर्स के लिए जीतने के लिए डेरो मुआके, जिसमें जो वो आप कुरानदाजी में हिस्सा लें, 5000 की शॉपिंग करें, कुरानदाजी में हिस्सा लें और हासिल करें कुरानदाजी के जरिए बारबेक्यू ग्रिल, इसके साथ साथ बास्केट्स, दीगर वाउचर, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के साथ साथ डेकोरेशन अप्लायंसेस भी जो वो मौजूद हैं। इसी वाले से आज जो अल-फतेह में जो लकी ड्रॉ का इनेकाद किया गया, जिसमें जो कस्टमर्स के गिफ्ट हैम्पर्स भी निकले। इसी वाले से हमारे साथ कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा बताइएगा, गिफ्ट हैम्पर अल-फतेह की जानिब से निकाला गया है, क्या कहेंगे? हर साल की तरह इस साल भी अल-फतेह ने अपनी जो रवायत को बरकरार रखा और गिफ्ट हैम्पर निकाला। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का, इन्होंने माशाल्लाह ये गिफ्ट हैम्पर है। मुझे कल कॉल गई थी, मुझे तो इल्म नहीं था इस स्कीम का, लेकिन उसके लिए मैं हाज़िर हो गया। तो इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं और तो कुछ नहीं इसमें। इधर हमारे साथ आदिल साहब भी हैं जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, मैनेजर हैं। अच्छा आप बताइएगा, जैसे कि हर हफ्ते जो कुरानदाजी का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें ढेरों इनामात निकाले जा रही हैं, ग्रैंड प्राइज़ क्या निकाला जाएगा और वो कब निकाला जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ग्रैंड प्राइज़ हमारा 13 अप्रैल को होगा, जिसमें हमारी तमाम ब्रांचों में सिटी कार भी होगी, बाकी कैश वोचर और इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट है, गिफ्ट बास्केट होंगे। कैश वोचर में 5000 से 25000 तक कैश वोचर होंगे इसमें। हाँ जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी अल-फतेह जो कोहिनूर प्लाजा जड़ावाला रोड पर है, उसने अपनी जो रवायत को बरकरार रखते हुए जो कुरानदाजी का इनेकाद किया, जिसमें जो वो आज गिफ्ट निकले हैं कस्टमर्स के, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी। और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि हर हफ्ते जो है वो कुरानदाजी का इनेकाद किया जाएगा और 13 अप्रैल को जो ग्रैंड कुरानदाजी होगी, जिसमें जो वो कार जो बम्पर प्राइज निकलेगी। तो इसलिए जो वो अल-फतेह आए, 5000 तक की शॉपिंग करें और कुरानदाजी में जो अपना हिस्सा डालें। जी अहमद साद, बहुत शुक्रिया आपका।
सनती शहर फैसलाबाद की फिजा बहार की सरगोशियां गूंजने लगी। इतवार की सुबह खुशगवार हो और दरख्तों पर झूमते सब्ज पत्तों और बागात में खिले रंग बिरंगे फूलों ने शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। तफसीलात कामरान सईद की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद की सरजमीन पर बहार ने अपनी रंगीन चादर बिछा दी। मौसम बहार के आगाज में ही शहर के बागात में जिंदगी की नई रमक दिखाई दे रही है। सूरज की किरणें सरसब्ज दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती हैं तो यूं महसूस होता है गोया आसमान से जमीन पर कोई सुनहरी आबशार बरस रही हो। हर तरफ ताजा कलियों की महक, शबनम में भीगे फूलों का रक्स और हल्की हवा में दरख्तों की सरगोशियां एक ख्वाबनाक सा मंजर पेश करती हैं। मौसम बहार में खिलने वाले फूलों की बात की जाए तो शहर की नर्सरियों में रंग बिरंगे फूलों की बहुत सी अकसाम सज चुकी हैं। पटोनिया, फ्लॉक्स, पेंजी, व्हाइट डेजी और जेरेनियम समेत फूलों की दीगर अकसाम शामिल हैं। माहिर नफ्सियात अमरीन इकबाल के मुताबिक मौसम बहार में खिलने वाले रंग बिरंगे फूलों और सरसब्ज दरख्तों को देखने से इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर इंतहाई खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। जैसे कि हम बहार की बात करें तो जब आप देखते हैं कि हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी धूप होती है, खूबसूरत से सरसब्ज पौधे होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, जिससे इंसान का जो माहौल है, आसपास की जो फ़िज़ा है वो बहुत एक खूबसूरत हो जाती है और इससे इंसान के दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन के लेवल्स जो हैं वो इन्हेंस होते हैं, जिससे इंसान को बहुत खुशी मिलती है, हमारी लाइफ में बहुत एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। यूं तो बहार का मौसम तमाम ही इंसानों पर खुशगवार असरात मुरतब करता है, लेकिन मुआशरे के हसास तरीन अफराद यानी शायरों के लिए बहार सिर्फ एक मौसमियाती तब्दीली नहीं बल्कि एक जज्बा, एक इल्हाम और तहरीक बनकर आता है। असर हाजिर के मारूफ तनकीद निगार और शायर डॉक्टर तारिक हाशमी के नज़दीक बहुत से क्लासिकी शुअरा की शायरी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बहार शायरों पर इंतहाई तख्लीकी और जमालियाती असरात मुरतब करती है। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, यानी सहरा जो है वो आज़ादी की अलामत है। इसी तरह आप देखिए कि इकबाल ने गुले लाला को नौजवानों का एक इस्तिआरा बनाया और लाला के फूल जब खिलते हैं तो इकबाल को ऐसे नज़र आता है जैसे नौजवानों की उमंगें जो है वो खिल उठी हैं। चुन चरागे लाला सोज़म दर ख़याबान शुमा, ई जवाना ने अजम जाने मनो जाने शुमा। मौसम बहार सिर्फ ज़मीन पर नहीं दिलों में भी उतरता है। जैसे दरख्त नए पत्तों और फूलों से संवर जाते हैं, वैसे ही दिलों में भी ख्वाहिशें, उमंगें और ख्वाब ताज़ा हो जाते हैं। कैमरा टीम शाहजेब अली और इशफाक बुखारी के साथ कामरान सईद, सिटी 41, फैसलाबाद।